यस। सो आज फर्स्ट क्लास है। टुडे इज द फर्स्ट क्लास। ठीक है। सो we will be covering the entire, okay, we will be covering the entire GS 4। ओके, GS 4 हम पूरा कंप्लीट करेंगे, एथिक्स। और ये स्पेशली हम करेंगे ताकि जो फ्रेंड्स जिनका मेंस में प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो चुका है, who have cleared prelims, so they can get a good head start। Okay, they can get a what good head start। ठीक है। और इसी तरीके से हम जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी हो गया, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ये सारी चीजें जो स्टैटिक है। ओके, इवन इंटरनल सिक्योरिटी, इन सबको ट्राई करेंगे कवर करने का अगस्त से पहले। ओके, बिफोर बिफोर अगस्त वी विल ट्राई। ओके, बिफोर अगस्त वी विल ट्राई कि हम कवर कर लें, ताकि जितने भी फ्रेंड्स हैं हमारे जो मेंस लिख रहे हैं उनको एक तरीके का सपोर्ट मिल जाए। टिल नाउ मोर देन 10 people have approached us कि they have qualified for the prelims, okay, for the from the initiative। okay, तो जो हेल्प हो सकती है हम वो जरूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज पहली क्लास से। तो लेट अस स्टार्ट विथ थिंकर्स। ओके, हम लोग थिंकर से स्टार्ट करेंगे बिफोर वी गो इनटू द कोर टॉपिक्स। ओके, कोर टॉपिक जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, प्रोबेबिलिटी, ये सब हो गया। उससे पहले इंपॉर्टेंट है थिंकर्स पढ़ना। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इसका दो कारण है। ओके, इसका दो, कहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट भी करेंगे हम। ओके, गुड मॉर्निंग वजीक भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? ओके, सो थिंकर्स यू कैन यूज इन essay as well, GS4 में you can use as well, and even you can, if you know thinkers, you can name drop them here and there in your GS paper as well. And in, even if you are creative enough, you can use them in your optionals. Okay, so there are multiple ways, okay, that you can do it. Now whatever I am going to teach you today, whatever I'm going to teach you, so this is, you might feel this is a more optional level knowledge. Okay, so if you are referring to the Max Weber bureaucracy theory, so this is generally, okay, this is generally taught in optionals। okay, but we will have a brief overview। what is the reason is हम ऐसा क्यों करेंगे? because ताकि जो people who have PSIR optionals, who have PSIR optionals, or people who have PubAd optionals, they do not have any undue advantage over us। okay, why give them undue advantage? Let us just get a brief idea why allow them to have an undue advantage over us. So that is my thinking। okay, so that's why we will be covering thinkers, not in a very detailed manner as someone from a PubAd optional or a PSIR optional will do, but in a way, in a manner which is which actually allows us to integrate this in our GS4 and our essays। okay, so this is the brief idea। okay, so let us start with administrative thinkers। okay, सबसे पहले we will talk about Max Weber। so Max Weber had given the bureaucracy theory, so I have written here GS2, you can use this in GS2 governance, you can use this in GS4 ethics, and you can use this in essay as well। हमारा, हम किस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्या बनने के लिए बैठ रहे हैं? why we are giving the civil services examination? to become what? Can you tell me? To become exactly what? we are sitting in the bureaucrats, right? we are, जब हम bureaucrats बनने के लिए बैठ रहे हैं, तो it is important that if you are sitting in an examination, if we are
sitting in an examination to become bureaucrats, you have to, have a brief idea of what is the bureaucracy theory, which, it is a very popular theory. Weberian bureaucracy theory is a very popular theory. Okay, we will just see what it is. Okay, so Weberian theory of bureaucracy, it defines bureaucracy as a highly structured, formalized, and also an impersonal organization. What it is saying, what it is basically saying, that जो Weber था, okay, there was this person called Max Weber. He defined bureaucracy as a structured, structured, highly formalized, and also an impersonal organization. Okay, one thing that you can make out, from all of them is that bureaucracy is an organization which is what? Highly unemotional. Can we say that? Yeah, non-emotional, unemotional is a better word, right? It's an unemotional organization क्योंकि impersonal है, बहुत formal है, and it is highly structured. Okay, तो ये तीन चीज आप याद रखना कि ब्यूरोक्रेसी जहां पर भी हो, ओके, ब्यूरोक्रेसी जहां पर भी हो वहां पर क्या क्या होगा? देयर विल बी स्ट्रक्चर. ओके, देयर विल बी स्ट्रक्चर, देयर विल बी समवन. Okay, there will be a hierarchy. Someone will be sitting above someone else. In a bureaucracy, someone will be sitting, okay, someone will be sitting above someone else. Yes, highly formal. The hierarchy, that we are talking about will be very rigid, and it will be impersonal. Okay, it will be impersonal. Okay, वेबर जो था, मैक्स वेबर, he is of the opinion that an organization must have a defined hierarchical structure. Abhi just we talked about it. Yes, we just talked about it, that it should have, okay, it should have a defined hierarchical structure and clear rules and regulations and lines of authority which governs it. You're understanding this? I'll tell you something. uh, मान लो कि you become an IAS officer. Okay, and this is your first day as an IAS officer. आप ADM या SDM allot हुए, you become SDM or ADM. This is your first day. Okay, so on that day you will go to your district magistrate. Okay, you will go to your district magistrate and he will tell you that Mr. XYZ or Miss XYZ, आपका फर्स्ट डे का टास्क क्या है? What is the first day task that you have to do is to call on, okay, is to do what? As an SDM or an ADM, your first day's task is to call on your superiors. बोलेगा आपको जाके DC सर से मिल लो, go meet the chief secretary sir, go meet the home secretary sir, go meet the divisional commissioner sir of this division, go meet the DM sir of this district. Why? Because you are now a bureaucrat and now you are part of a defined hierarchical structure. Okay, आपके जो roles है, आपकी जो responsibilities है, आपका जो, your whatever your roles and responsibility, it is now very defined in a strict hierarchy. This is not the case. Okay, this is not the case. Suppose if you are good, if you are to go to a corporate, वहां पर call on का culture नहीं है. Okay, calling on का culture, it is only present in a bureaucracy. Okay, आपको अगर आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, then only you will go and meet people in you will go your meet bosses and you will go and meet your managers in the corporate, because it does not have a defined hierarchical structure, whereas in a bureaucracy there is a defined hierarchical structure. Okay, so this is an example that I was giving you to make you understand
that how bureaucracy is different from maybe a startup or a corporate culture. And there are clear rules and regulations and lines of authority. There are clear rules and regulation and lines of authority. इसका मतलब समझ रहे हो? Corporate में, if you go to corporate, there is there is not well defined lines of authority. If you are suppose you are a software developer, SDE2, there is something called a software development engineer 2. Okay, in suppose Amazon, so you could be given responsibility of a manager, you could be given responsibility of a team lead, you can make decisions. Okay, the CEO can say, okay, Mr. SDE2, you can make this decision, I am delegating it to you. Whereas this will not be the case. Okay, this is not going to be the case in bureaucracy. There is a defined line of authority, there are clear rules and regulations, okay, which is governing it. अगर आप SDM हैं तो आप DM के पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते. DM will only, there will be a DM above you जो कि उस पावर को, okay, उस पावर को यूज कर रहा है. Okay, if you are a DM, you cannot function as a chief secretary. समझ आ रहा है? If you are an SP, you cannot function as an IG or a DGP. Okay, because there are clear rules and regulation and there is a clear line of authority which is governing it. Okay, इसीलिए आप देखते होगे, I'll just be a little bit informal. Okay, जैसे आप, if suppose your father, okay, he is in the government sector, or if suppose you have seen people in the private sector. Okay, तो वहां पर क्या है कि जब manager walks in, तो you just say, hey, good morning, how are you doing, right? And you just carry on with your work. If your manager comes into your room, you say, hello sir, how are you doing? Yes sir भी नहीं बोलते हैं आजकल, तो corporate में sir भी मना कर दिया. लेकिन when in the same way, if suppose there is an SP, he walks into the room which is full of inspectors and constables, so the entire the entire room will stand up, sir. Okay, by saying sir. Why? Because there is a defined hierarchical structure and a defined line of authority. Okay, that's why, that is the reason. तो इसीलिए अगर आपका ईगो बहुत हाई है, suppose if you are a very egoistic person, so it is it is advisable that you prepare for UPSC. Okay, then that way you can satisfy your ego as well. According to Weber, bureaucracy ideally has the following characteristic. जरा सा देख लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, especially for people who are giving the mains, okay? तो कौन कौन है यहाँ पर? प्रियांश है, SS भाई है, ठीक है? तो if you are giving the mains, तो आपकी ये responsibility है कि आप इस जो भी ये 10-12 पेज है, okay, after the class, what you can do, and even people who are not giving mains, who are giving mains next year, what you can do is that इसका ना आप 2 पेज के अंदर, within 2 pages you just summarize everything. Okay, ये summarize करना बहुत important है. Okay, summarize करना बहुत important है within 2 pages, so that when जब September में, okay, you are revising the final part, तो ये आप you can integrate, you can remember and then integrate in your answers. नहीं तो ये 10-12 पेज ऐसे ही रखा रह जाएगा. Okay, और कोई फायदा नहीं होगा, because आपका समय बहुत कीमती है, आप बहुत कीमती समय इन्वेस्ट कर रहे हो इस क्लास में. ओके, सो देखते हैं क्या क्या है वेबर के हिसाब से. ओके, ब्यूरोक्रेसी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है. सबसे पहले स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर. ओके, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? कॉर्पोरेट में, आई विल गिव यू माय एग्जांपल. आई वाज इन कॉर्पोरेट, तो मैं एरिया मैनेजर था. आई वाज एरिया मैनेजर ऑफ दिल्ली, ठीक है. बट मैंने ना होर्डिंग भी लगाई है, मैंने होर्डिंग्स भी लगाई है. मैं जो आदमी है, ओके, उसके बाइक के पीछे, जो पियून था, उसके बाइक के पीछे बैठ के मैंने फूड पैकेट्स भी बंटवाए हैं. आई वाज द एरिया मैनेजर, मेरे अंडर दिल्ली का पूरा बिजनेस था. लेकिन मैंने उस कंपनी में होर्डिंग्स भी लगाई है जाके. ओके, देयर इज
लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ओके, आप कॉर्पोरेट में सब काम करते हो, वेयर एज सपोज यू आर एन एसपी और यू आर अ डीएम, तो आप पियून का काम नहीं करोगे। ओके, यू विल नॉट बी डूइंग द वर्क ऑफ अ पियून। सपोज यू आर एन एसपी, यू विल नॉट बी डूइंग द वर्क ऑफ अ दरोगा और अ सब इंस्पेक्टर और अ इंस्पेक्टर। देयर इज अ, सबसे पहले तो क्या है वहां पर, क्या है ब्यूरोक्रेसी में, क्या है, व्हाट इज देयर, हायरार्की है मेरे भाई। देयर इज अ वेल डिफाइंड हायरार्की एंड अ लाइन ऑफ अथॉरिटी। यस, ठीक है। उसके वजह से देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। पानी पिलाने के लिए भी, यू नो, टू टू गिव यू वाटर, देयर इज अ पर्सन। ओके, टू ड्राइव, एक ड्राइवर रहेगा, वो ड्राइव करेगा। एक एसपी रहेगा, वो मैनेज करेगा। एक कांस्टेबल रहेगा, you know, he will go on patrol. The SP will not be going on patrol, the SP will not be driving, the driver will not be managing, the driver will not be going on patrols. This is not the case in, you know, in a corporate structure which is non bureaucratic. Okay, ऐसे कहा जाता है कि big corporates after over a period of time, once they, you know, become uh, uh, they cross certain numbers, they also start behaving like a bureaucratic organization. And this leads to what, downfall of these corporates. जैसे बड़ी कंपनीज है ना, टोयोटा, यू नो, लैक्स एंड लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज। बड़ी कंपनी कौन हो सकती है, और क्या हो सकती है, आईबीएम, कोका कोला। ठीक है, आप देखोगे मार्क जुकरबर्ग। ओके, हाँ, टाटा, यस। तो दीज, वंस दे बिकम, यू नो, बिग, जब ये बड़ी हो जाती है, once they become big, they start behaving like a bureaucratic organization. What do people mean when they say ki Tata has started behaving like a bureaucratic organization or IBM has started behaving like a bureaucratic organization? They are saying that now there is too much specialization of labor. Yes, of course. Yes, see, this is very natural, na. This is very natural, and this is not a problem in Indian context. आप बोल रहे हो कि bureaucrats are out of touch with reality. This is not a problem in Indian context. This is a worldwide problem. ऐसा मत समझो कि आप ही के बाबू चौपट है, आप ही के देश के बाबू चौपट है, हर देश के बाबू चौपट है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इसीलिए बोला जाता है, देखो, यू नो, व्हाई Zuckerberg, okay, why Zuckerberg wear this, you know, clumsy t-shirt और, you know, hoverboard से जाता है अपने ऑफिस में, and, you know, उसका कोई ऑफिस नहीं है, why does he sit, you know, with other people? मुकेश अंबानी, okay, you can quote these examples, please. ये थोड़ा सा दिमाग खुला रखो, whatever I am stating, तो ये सारे एग्जांपल्स में हो सकता है। मुकेश अंबानी doesn't have an office. मुकेश अंबानी के पास ऑफिस अपना नहीं है, he sits with other people, he eats with other people. What is the reason? To be less bureaucratic. अगर उनका ऑफिस होगा तो there will be a well defined hierarchy. Everyone knows who is मुकेश अंबानी in the office. He is the head, he is the boss. Okay, लेकिन अपने, वो एक रूम है तो उसके बीच में बैठते हैं, किसी ऑफिस में बंद होके नहीं बैठते हैं, बगल में उनके लोग काम करते रहते हैं। हाँ, what is that, this is the reason Elon Musk, very good example, ये करता है। ओके, सेम हैपेंस विद जेफ बेजोस। जेफ बेजोस का जो ईमेल है, एनीवन कैन अप्रोच हिम। आप ईमेल करके देखो जेफ बेजोस को, ही विल रिप्लाई यू बैक। मतलब ही विल नॉट हिमसेल्फ, क्योंकि अब तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, बट यू नो, समवन फ्रॉम हिज ऑफिस विल रिप्लाई यू। ओके, जेफ बेजोस के अप्रोचेबल है, व्हाई? टू बी लेस ब्यूरोक्रेटिक। बड़ी कंपनीज का डाउनफॉल कहां से स्टार्ट होता है? वंस दे बिकम हायरार्किकल, वंस दे बिकम स्ट्रिक्टली हायरार्किकल। ओके, वो चीज होती है। ठीक है, हमारे कंपनी में, आई वाज वर्किंग इन अ, यू नो, इन अ कंपनी लास्ट टाइम। ठीक है, नई कंपनी थी, तो वहां पर मीटिंग होती थी, टीम मीटिंग्स होती थी। तो वहां पर टेलीकॉलर्स जो प्रोडक्ट बेच रही थी, लेडीज जो टेलीकॉलर थी, वो भी अपने आइडियाज सामने रखती थी। एंड इवन द वाइस प्रेसिडेंट, यू नो, ही यूज्ड टू से थिंग्स
कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो उसको करेक्ट करती थी जो लेडी टेलीकॉलर थी। आई रिमेम्बर एक वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ बोला कि ऐसे करना चाहिए, ओके, उसको ऐसे करना चाहिए। द टेलीकॉलर से नहीं नहीं सर आप गलत हैं, ओके, और सबने बोला हाँ हाँ मैम ये आप सही बोल रही हैं। तो दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ अ नॉन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। इन अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, देयर विल बी सो मेनी फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, देयर विल बी स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। इफ यू आर अ टेलीकॉलर, हाउ डेयर यू से दैट टू मी? I am the vice president. There is a hierarchical structure. I am sitting at the top of the food chain. You are sitting at the bottom of the food chain. You should keep your mouth shut. अगर ये होता तो that means it would have become a bureaucratic organization. Okay, ठीक है। Yes. हाँ, ये भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि इंस्टाग्राम क्यों खरीदा गया। बिकॉज जुकरबर्ग सेट की फेसबुक में बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी आ गई है। तो जब ब्यूरोक्रेसी आती है तो क्या होता है, रिजिडिटी बढ़ जाती है। यू बिकम लाइक अ टर्टल। ओके, एक टर्टल देखा है ना, टर्टल का क्या है, what is the issue with turtle? It takes a lot of time to turn around. यहां से यहां घूमने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसके वजह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग हैम्पर होती है। बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग टेक्स अ हिट। ओके, when you take so much time, when there is so much formal set of rules and regulations, when there are so much rules and regulation, it takes a lot of time to turn around and make decisions. उसके वजह से bureaucracy is looked down upon. ऐसा क्यों बोला जाता है? हम 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, ये वर्ड है ना, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, लाइसेंस राज, who was the progenitor of license raj? The Indian bureaucracy. Okay, notorious babus. Okay, yes, देखो कितने सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं। वजीक हैज गिवन एग्जांपल, इसके पहले प्रियांश का बढ़िया एग्जांपल था इंस्टाग्राम वाला। ओके, जस्ट कीप एन आई ऑन द चैट बॉक्स आल्सो। ओके, कुछ भी अगर ऐसा अच्छा मिले तो उसको आप मे बी यू कैन राइट इट डाउन और मे बी यू कैन कॉपी इट एंड पेस्ट इट समवेयर। Okay, impersonality in the application of rules, well-defined hierarchy within the organization, formal set of rules and regulation, and specialization of labor. Okay, ये चार चीज इंपॉर्टेंट है। इफ दे विल आस्क यू कि ब्यूरोक्रेसी के हाइलाइट्स बताओ, 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके जीएस 4 में। और व्हाई ब्यूरोक्रेसी इज लुक डाउन अपॉन। और या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज कोई जीएस 2 में गवर्नेंस का क्वेश्चन आ गया कि क्या इशू है, तो यू कैन राइट कि ब्यूरोक्रेसी के वजह से, बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी देयर इज अ वेल डिफाइंड हायरार्की एंड देयर आर सो मेनी फॉर्मल रिजिड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस लीड्स टू यू नो a stagnation in decision making. Okay, this lead to a lull, इस टाइप से आप लिख सकते हो इन डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर देखो, 6 मेजर प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म के आई हैव रियलाइज्ड, एक्चुअली मैं इसको हाईलाइट कर रहा था एंड आई रियलाइज्ड कि नाउ इट इज नॉट लुकिंग वेरी सीरियस। तो मैंने देखो आप देखा होगा तो आगे नहीं किया है। ओके, यहाँ से नहीं किया है, यहाँ से बंद कर दिया, बट इन फ्यूचर आई विल मेक श्योर कि नहीं होगा। ठीक है, इन फ्यूचर नहीं होगा। ओके, ओके, वेलकम टू द क्लास इरफत। आई एम ऑल्सो ग्लैड। 6 मेजर प्रिंसिपल, लेट अस टॉक अबाउट द 6 मेजर प्रिंसिपल ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म। सबसे पहले फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, रूल्स बेस्ड मैनेजमेंट। ओके, देयर इज अ रूल्स बेस्ड मैनेजमेंट। अगर आपने कभी गवर्नमेंट ऑफिस को देखा है, या गवर्नमेंट, आपके फादर गवर्नमेंट ऑफिस में, मदर गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आपको पता होगा। ओके, सपोज आपके फादर को छुट्टी लेनी है 2 days की। आई टेल यू, आई वाज इन दी कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मुझे छुट्टी लेना था 2 दिन के लिए। आई वाज नॉट फीलिंग वेल। ओके, बहुत ज्यादा आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बहुत ज्यादा काम था। आई जस्ट मैसेज इन द मॉर्निंग कि सर 2 days लीव आई वांट। I would be indebted to you that you grant me 2 days leave. He said okay, leave granted, that's it. मैंने अपने सीईओ को मैसेज किया, आई वाज रिपोर्टिंग टू माय सीईओ, और मुझको बोला कि सर 2 days लीव चाहिए मुझे, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो ही सेड ओके ग्रांटेड। यहाँ पर अगर मेरे फादर को, ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इनको 2 day लीव चाहिए, तो पहले फॉर्म एक्स भरो, उसके बाद फॉर्म वाई भरो,
ओके, उसके बाद इसके पास फॉर्म जाएगा, यहाँ अप्रूवल होगा, उसके बाद यहाँ अप्रूवल होगा, उसके बाद फाइनल बॉस अप्रूवल देगा, और उसके बाद यू कैन गो ऑन हॉलीडे। लेकिन जब मेरे फादर हॉलीडे से वापस आएंगे, फिर वो एक फॉर्म भरेंगे कि क्यों हॉलीडे पे गए। उसके बाद वो फॉर्म फिर एक एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अप्रूव करेगा, और उसके बाद वो ऊपर जाएगा। समझ रहे हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यहाँ पर आपको एग्जांपल देके मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? रूल्स बेस्ड मैनेजमेंट, फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर। यस। फंक्शनल स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज हाईली स्पेशलिटी बहुत हाई है, समझ रहे हो? स्पेशलिटी मतलब समझ रहे हो, इट इज हाईली। अब जब क्या है, सपोज हमने ऊपर क्या बात की थी, आप यहाँ देखो तो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। हर काम करने के लिए कोई बंदा है, प्रेजेंट है। अगर आपका सीईओ है, वो डिलीवरीज नहीं करेगा। स्टार्टअप में क्या होता है, स्टार्टअप में विच इज अ एंटी ब्यूरोक्रेसी कल्चर। स्टार्टअप एक तरीके से एंटीडोट हम बोल सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी का एंटीडोट क्या हो सकता है? स्टार्टअप हो सकता है। वहां पर सीईओ भी डिलीवर करता है। जब फ्लिपकार्ट बना था, तो जो बिन्नी बंसल और सचिन बंसल है, दे यूज्ड टू डिलीवरी करते थे किताब की। अगर आपने कुछ फ्लिपकार्ट से मंगाया 2008 में, तो देयर वाज अ वेरी गुड चांस कि बिन्नी बंसल एंड सचिन बंसल वुड टर्न अप एट योर डोर। ओके। लेकिन यहाँ पर अगर सपोज फ्लिपकार्ट अगर एक ब्यूरोक्रेटिक कल्चर होता, तो सचिन बंसल एंड बिनी बंसल वुड हैव सेड कि मैं क्यों डिलीवरी करूं? व्हाई शुड आई डिलीवर? ओके, व्हाई द हेल शुड आई डिलीवर? ओके, देयर आर पीपल, इन लोग को बोलो मैंने मैंने फंडिंग क्यों रेज की है। ओके, दिस इज द थिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? देयर विल बी स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। और ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, व्हेन देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, तो ऑटोमेटिकली एक एरोगेंस आ जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी, bureaucrats and bureaucracy is very synonymous with arrogance, ego. Okay, I'll tell you something. मेरे फादर, बहुत सारा एग्जांपल मैं दूंगा, ठीक है? डू नॉट गेट मी अदरवाइज। ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट इट, बिकॉज मेरे फादर इज अ ब्यूरोक्रेट, तो मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लाइव एग्जांपल्स, ताकि बेटर समझ पाओ। ही वेंट टू लंदन। ओके, यूके गवर्नमेंट में किसी डिपार्टमेंट में वो गए। ओके, और वहां पर जाके उनका कोलैबोरेशन था कि आप भी हमसे कुछ सीखो, मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। तो वहां पर जो उनका बॉस था, मतलब फादर के लेवल का था, जो सेम रैंक पे था, तो दे वर एंजॉयिंग टी। उन्होंने इनवाइट किया इंडियन कॉलीग्स को कि कम एंड हैव टी। ओके, आफ्टर द टी वाज डन, आफ्टर वो चाय पी लिया गया, ठीक है, चाय लाया गया अंदर। ओके, किसी कोई चाय लेके आया, उसके बाद चाय जो लेके आया, ओके, बंदा वो भी आके इनके बीच में बैठ गया, एंड ही सेड ओके, आई एम दिस मैन, एंड आई एम ये। तो वो एक ट्रॉली थी, उसको लेके आया और वो अंदर घुस गया, और सबको लगा वो चाय वाला है। पहले उसने चाय सबको सर्व की, एंड ही सैट डाउन विद देम। तो उनको समझ नहीं आया कि चाय वाला क्यों बैठ गया हमारे साथ। देन ही सेड कि ओके, आई एम दिस ये मेरा मेरा ये ओहदा है, एंड आई एम सिटिंग हियर बिकॉज आई बिलोंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये। ओके, देन ही सेड ओके। आफ्टर द टी वाज डन, जितने भी ऑफिसर्स थे, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने टी क्लियर किया, और जो ट्रॉली है उसको पुश करते हुए बाहर ले गए। तो दिस इज अ एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल ऑफ अ लेस ब्यूरोक्रेसी। वेयर एज इंडिया में क्या होता कि भाई मैं कैसे चाय छूऊंगा? ओके, मैं आईएएस हूं, मैं आईपीएस हूं, व्हाई द हेल शुड आई टच द टी? ओके, बिकॉज एक बंदा है, 10 बंदे होते हैं, ठीक है, 10 प्यून होता है, एक 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 ऑफिसर पे 4 4 प्यून लगते हैं, 3 मक्खी मार रहे होते हैं। ओके, देर इज हाई स्पेशलिटी। ओके, वेरी हाई स्पेशलिटी, देर इज वेरी हाई स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। जहां पर ये ज्यादा हो, वहां समझ लो ब्यूरोक्रेसी ज्यादा है। ओके, आई टेल यू, कुछ कुछ महीने पहले आई वेंट टू माय फादर्स ऑफिस। ओके, पास ही में है घर के, एंड आई वेंट टू हिज ऑफिस। वहां पर मैंने देखा कि लिफ्ट, वैसे मैं मुझे उनके उनके चेम्बर्स तक जाना था, तो लिफ्ट में जाने के लिए एक बंदा खड़ा था कि वो दबाएगा। 4th फ्लोर पे था, तो मैं दबाया, बोलता नहीं नहीं आप नहीं, मैं। फिर वो 4th पे दबाया, जब मैं ऊपर गया 4th पे, जब खुला, तो वहां पर भी 2 आदमी खड़े थे लिफ्ट पे। मैं फादर से पूछा इनका काम क्या है, तो ही सेड कि दे हैव बीन अलॉटेड कि लिफ्ट के पास खड़े रहे।
मैं बोला लिफ्ट तो कोई यूज नहीं कर रहा है। अभी मैंने देखा कि आई वॉज द ओनली पर्सन हु वाज यूजिंग द लिफ्ट। ओके, फिर मैं गया तो फादर के रूम के बाहर दो आदमी बैठे हुए थे। आई सेड इन दोनों का काम क्या है? ही सेड कि एक पानी लाता है, एक चाय लाता है। तो मैं बोला कि आप एक से नहीं काम कर सकते, मे बी डेलीगेट हिम अदरवाइज। तो बोले कि इतने लोग हैं, इतने ज्यादा लोग हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कि पता ही नहीं चलता है कि किस किनको कहाँ लगाए। तो दिस इज अ साइन ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी। एक नॉन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन विल फंक्शन लीन इन अ लीन मैनर। आप ये लिख सकते हो। आप आपसे अगर पूछेगा कि ब्यूरोक्रेसी वर्सेस एन एंटी ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, तो ब्यूरोक्रेसी विल फंक्शन एज इन अ वेरी लीन मैनर। वो इतने ही लोग रखेगा, वो इतने ही लोग रखेगा जितना इस्तेमाल में आए। ओके, वो इतने ही लोग ऑलराइट रखेगा जितना इस्तेमाल में आए। ठीक है, देर आर एक आदमी पे 4 ड्राइवर है। आई नो आईपीएस ऑफिसर्स जिन पे 4 ड्राइवर है, कोई मतलब नहीं है। एक शिफ्ट में ऐसा भी नहीं है, आप बोल सकते हो कि शाम के शिफ्ट में कि अच्छा ठीक है भाई, हो सकता है 24 घंटे में दे कैन ड्यू ड्यूटी। एक शिफ्ट में 4 ड्राइवर है। एक उसके फादर इन लॉ को ले जा रहा है पार्क में, एक ले जा रहा है मदर इन लॉ को टेम्पल, वन ड्राइवर इज टेकिंग सर टू ऑफिस, वन ड्राइवर टेकिंग बाबा टू टेनिस क्लास। ओके, आप समझ रहे हो व्हाट इज द इशू? ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में एक तो सबसे पहले इतना ज्यादा स्पेशलिटी है। ओके, उसके वजह से ब्लोटिंग है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लोटिंग। ओके, अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इज ब्लोटेड, a bureaucratic structure is bloated, and at the same time a non bureaucratic structure is lean. Just keep this in mind, okay, when you are writing. Up focused or in focused, what is the difference between up focused or in focused? ठीक है, ऑल राइट। गाड़ी भाई बहुत सारे यार, मैं काउंट भी नहीं किया मैंने। ओके, हाँ, दिस इज सम काइंड ऑफ अ डिस्गाइज इन एम्प्लॉयमेंट एज वेल। अगर इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट में देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप फोकस्ड एंड इन फोकस्ड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप फोकस्ड एंड इन फोकस्ड मिशन? जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है, इट इज टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, इट इज टुवर्ड्स सर्विंग द बोर्ड, या इट इज टुवर्ड्स सर्विंग द स्टेक होल्डर, देन इट कैन बी सेड दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज अप फोकस्ड। वेयर एज अगर आप अपने आप को सर्व कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सर्विंग इटसेल्फ, देन वी कैन से इट इज इन फोकस्ड। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस वाले फ्रेंड्स। आपके पास उतना समय नहीं है, व्हाई आई एम सेइंग दिस कि मेंस वाले फ्रेंड्स, बिकॉज आपके पास उतना समय नहीं है दैट दिस टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी विल फ्लो नेचुरली टू यू। आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली इंसर्ट करना पड़ेगा। वेयर एज पीपल हु आर राइटिंग इन 2024, दे हैव इनफ टाइम कि इतने बार रिवाइज कर सके उसको दिसंबर तक। ओके, अभी से लेकर दिसंबर तक की ये नेचुरली आ जाएगा। ओके, इफ यू आर राइटिंग सपोज सम आंसर, तो ऑटोमेटिकली अप फोकस लिख दोगे। वी शुड हैव एन अप फोकस। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अप फोकस्ड। whereas you people who are giving mains in September, आपको थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ताकि यू हैव टू इंसर्ट दीज आर्टिफिशियली। ओके, तो इन फोकस्ड है जब अपने आप को सर्व कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को जब सर्व करे। ओके, कहते हैं ना कि आईपीएस लोग अपने आप ही को सर्व कर रहे हैं, एक दूसरे का बैक स्क्रैच कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर आईएएस ऑफिसर्स दूसरे आईएएस ऑफिसर्स को हेल्प करते हैं। केस आया था अभी, आई जस्ट डिस्कस इट ब्रीफली, कि जहां पर एक आईएएस ऑफिसर थे एंड दूसरी आईएएस ऑफिसर लेडी आईएएस ऑफिसर थी। तो लेडी आईएएस ऑफिसर के जो हस्बैंड थे, he was he was a businessman, और वो लैंड एक्विजिशन में थे। ओके, he used to acquire land और उसको फिर आगे बेचते थे। और उसके बाद जो ये आईएएस ऑफिसर थे, he was in land management only, he was a secretary land management। तो ये हेल्प कर रहे थे इस आईएएस ऑफिसर को बाय टेलिंग कि ओके यू कैन बाय दिस लैंड, you can buy this land, this is free from any lafda, दिस इज फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोवर्सी। तो ये जो इनके हस्बैंड थे लेडी आईएएस अफसर के, ये इन जेंटलमैन के आईएएस अफसर के डायरेक्शंस पे ही वाज परचेजिंग लैंड। तो जब ये बात आगे आई, ओके, ये बात जब आगे आई तो बहुत ज्यादा बवाल मचा। ओके, कि दिस आईएएस अफसर इज डूइंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अ
टोटली डिफरेंट टॉपिक, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर केस स्टडी. बट यू कैन राइट दीज थिंग्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एथिक्स में जब तक एग्जाम्पल्स नहीं इंक्लूड करोगे हर आंसर में अपने, और जबरदस्ती वाले नहीं, जबरदस्ती वाले आंसर्स नहीं, जब तक एग्जाम्पल जो आपके ऑर्गेनिक नहीं होंगे तब तक ये नहीं होगा. तो ये जहां पर भी आप देख रहे हो, सपोज यूट्यूब रील्स, if you are watching some YouTube reel, I'll tell you how I inculcated examples through YouTube reel. It is the worst case scenario. YouTube reel से examples मिल रहे हैं, but मिल रहे हैं, ठीक है. Last part, employment based on technical qualification. Employment is based on technical qualification. ठीक है. आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन ये मतलब नहीं है बीटेक है या ही इज अ पीएचडी इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ये नहीं बोल रहे हैं. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि हर पोजीशन का, every position, if suppose you are an IAS officer also, there is a certain qualification that you have to fulfill. Okay, role specificity है. IAS है तो ग्रेजुएट होना चाहिए, सिविल सर्विस क्लियर करना चाहिए, तो ये दिस इज योर टेक्निकल क्वालिफिकेशन. ऐसा नहीं है कि सबको बीटेक होना चाहिए. जैसे चाइना में सारे ब्यूरोक्रेट्स आर इंजीनियर्स. चाइना का रूल है कि एवरी ब्यूरोक्रेट इज एन इंजीनियर. जो अगर आपको सीसीपी में आगे बढ़ना है, यू हैव टू बी अ इंजीनियर. Up focused mission to serve the stakeholders, board or any other agency apart from itself. Apart from itself. Whereas जब in focused mission होगा तो is to serve the organization itself. आपको मैंने एग्जांपल दिया ना, वो आईएएस अफसर कैसे हेल्प कर रहा था दूसरे आईएएस अफसर के हस्बैंड को. I gave you the example. तो वो in focused है. You scratch my back, I will scratch yours. ठीक है, तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ. मैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में आया तो तुम मेरा होटल करा दो फ्री में. जब तुम मेरे डिस्ट्रिक्ट में आओगे तो मैं तुम्हारा होटल करा दूंगा फ्री में. तो दिस इज अ वेरी इन फोकस्ड थिंग. ओके, इन फोकस मिशन. जब इस टाइप का एटीट्यूड रहेगा ब्यूरोक्रेट्स का, तो इट मींस द ऑर्गेनाइजेशन टू व्हिच दे बिलोंग, इट हैज एन इन फोकस मिशन. ओके, हाउ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व फ्रॉम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर. ब्यूरोक्रेसी इज अ वेरी वेस्टर्न कंसेप्ट. देखो, हमने पढ़ा था ना अमत्या, अमत्यास पढ़ा था. अमत्यास दंडनायाधीश, दंडनायक धीश हमने पढ़ा था ना, गुप्ता पीरियड के उपारिकाज. और क्या पढ़ा था, विषयापतिज. ठीक है. सो दीज वेर द ब्यूरोक्रेट्स, नो डाउट. यस, ये सब पढ़ा था ना हमने. दीज आर द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, हम ये कहते हैं. लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी हम अभी पढ़ रहे हैं, आईएएस अफसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज, दिस इज अ वेरी वेस्टर्न कंसेप्ट एंड दिस इज अ वेरी ब्रिटिश कंसेप्ट. ओके, तो जो अमत्याज है, उपारिकाज है, विषयापतिज है, ओके, कोषाध्यक्ष है, राइट, संधि विग्रहिका वगैरह जो है, so these are from a traditional structure. They are not from a bureaucratic organization. Bureaucratic organization is a very western or a british concept, हम ये कह सकते हैं. ओके, अब देखते हैं कैसे डिफरेंट है. सपोज अ मुगल ब्यूरोक्रेसी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दिस ब्यूरोक्रेसी जो अभी है हमारे पास. ओके, यार वो भी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर. आई टेल यू हाउ. चाइनीज स्टार्टेड सिविल सर्विसेज ओपन कंपटीशन, हम ये कह सकते हैं. ओपन कंपटीशन, चाइनीज सबसे पहले, चाइनीज का ही एक ओपन कंपटीशन था. तो चाइनीज सिविल सर्विसेज, वो इट गोज as far as it is said. Okay, it is said कि एग्जामिनेशंस हो रहा है चाइना में, एग्जामिनेशन हो रहा है. देयर आर डॉक्यूमेंट्स, ओके, कि कैसे प्रिपरेशन. ओके, कैन यू हियर मी? हेलो, यस. ओके, सो अभी देखते हैं डिफरेंस क्या है. तो इन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स द लीडर डेलीगेट्स ड्यूटीज, द लीडर डेलीगेट्स ड्यूटी एंड कैन चेंज देम एट एनी टाइम. एक सेंटर ऑफ पावर है. सपोज देयर इज अ किंग या नोबल है कोई, and he calls 10 officials and he says, okay, you will do this, 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 you will do this. Okay, और उसके बाद वो डेलीगेट कर देता है ड्यूटी. whereas ब्यूरोक्रेसी में ऐसा नहीं है. ब्यूरोक्रेसी में ऐसा नहीं है. ब्यूरोक्रेसी में पहले से डिफाइंड है कि अगर ये पर्सन है तो ये यही करेगा.
ये जो किंग है या सेंटर ऑफ पावर है, ये बोल सकता है कि तुम भाई, मैंने तुमको बोला था एक्स करने के लिए, अब से तुम वाई करोगे। मैंने इसको बोला था वाई करने के लिए, अब से तुम जेड करोगे। वेराज यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में पहले से है, ये फिक्स्ड है कि अगर कोई पर्सन सर्टेन पोजीशन पे है, पोजीशन 1 पे, तो ही विल बी डूइंग एक्स, ही विल नॉट बी डूइंग वाई। Okay, it is written down, it is rules are written down, okay, in bureaucracy, whereas rules are not written down. Okay, your rules and responsibilities are not written down in traditional structures. Okay, जो fiefdom होता है, या किंगडम्स होता है, या मोनार्की होती है, या फ्यूडल ओके फ्यूडलिज्म होता है, वहां पर डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी होती है, एंड इट कैन चेंज एनी टाइम। ओके, चेंज देम एनी टाइम। इन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन देयर इज क्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, कौन क्या करेगा। अगर तुम डीएम हो तो यू विल बी डूइंग दिस, तुम्हारा रोल्स ये रहेगा, तुम्हारा इट विल बी दिस और दैट, इन फॉर्म ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। Okay, in form of official duty. Okay, in traditional structure the subordinate follow the orders of superior but can appeal, okay, if they feel the need. Okay, okay, sorry, this is my bad. Suppose in traditional structures the subordinate follow the orders of superior, ये गलत एक्चुअली, ठीक है, ये आई थिंक ये गलत लिखा। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में सबऑर्डिनेट है ना, वो फॉलो करता है ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर बट कैन अपील इफ दे फील द नीड। इट इज नॉट पॉसिबल इन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ओके, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इज मोर रिजिड because the rules are specifically laid down. Okay, in bureaucratic organization the rules and are exhaustive. Exhaustive का मतलब क्या, डिटेल्ड है। कभी भी जैसे सपोज आप ये देखोगे, अगर किसी पे इन ब्यूरोक्रेसी, ओके, इन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन किसी पे एक्शन लिया जाता है फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, या फॉर ओवर स्टेपिंग द लाइन, तो आप देखना कितने डिटेल्ड मैनर में कि आपका XYZ ड्यूटी था, बट विथ 1.1 सब क्लॉज बी, उसका सब क्लॉज सी आपने ये वायलेट किया। अभी जाओगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे कल को, तो लबासना में ट्रेनिंग होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज जाओगे आप वहां पर, आप बने IAAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर, तो शिमला में ट्रेनिंग होती है। तो शिमला में क्या पढ़ाया जाएगा? सबसे पहले IAAS रूल्स पढ़ाया जाएगा। आप कस्टम, IRS कस्टम बनोगे, ओके, GST बनोगे, तो फरीदाबाद में क्या पढ़ाया जाएगा? फरीदाबाद में पढ़ाया जाएगा IRS GST रूल्स। और रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, आईएएस रूल्स, आईपीएस रूल्स, पुलिस मैनुअल, व्हाट आर दिस? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। कल को अगर जाओगे, इंटेल में सपोज काम करते हो आप, या सपोज आप गूगल में काम करते हो, यू विल गो, और आपको थोड़ी कोई गूगल मैनुअल पढ़ाएगा, कोई आपको गूगल मैनुअल पढ़ाएगा या कोई आपको गूगल रूल्स पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाओगे, अपने डेस्क पे बैठोगे, कंप्यूटर खोलोगे, काम करना शुरू करोगे। यस, लेकिन यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में डिफरेंट है, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी। ओके, अगर आप एसडीएम भी बनोगे फिर भी आपको, ओके, स्टेट पीसीएस से भी बनोगे, वहां पर भी आपको मैनुअल पढ़ाया जाएगा। क्यों? रूल्स है, बिकॉज यू आर नाउ पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, so there are defined rules, okay, which are exhaustive, which are stable, they do not change. Okay, do not change, अगर उनको चेंज करना है तो दे इलेबोरेट प्रोसेस है। ओके, कोई एक इनिशिएट करेगा, उसके बाद उस पे चर्चा होगी, उसके बाद जैसे नहीं होता आपका कैसे एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, उसी तरीके से। ओके, एंड एम्प्लॉय, ओके, कैन लर्न फ्रॉम देम इजीली। ठीक है, एम्प्लॉय जो है ब्यूरोक्रेसी में, कोई भी एम्प्लॉय है, दे कैन रेफर टू दैट मैनुअल एंड से कि अच्छा, मैं एसपी हूं तो मेरा जुरिस्डिक्शन यहाँ तक है क्योंकि ये पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है। ओके, इजिली कोई भी पढ़ सकता है। The rules are rigid and recorded in permanent files. Okay, the rules are rigid and recorded in permanent files.
In a bureaucratic setup, the means of production belongs to the organization. They do not belongs to an individual. ठीक है? They do not belong to an individual. जो कार होती है, सपोज आप एसपी हो, एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, यू आर एन एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और अ डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, and you become, you go to that district, you assume charge, you have 10 cars. When you are removed or when you are transferred as the SP or DM, do you take those cars with you? Can you answer me? Do you take those cars with you? Suppose you are, oh, okay. The answer is no. Okay. The answer is no. You do not take those cars with you, right? It will be transferred. Those cars, the jurisdiction over those cars will be transferred to the new SP, new DM, who will take over your junior. Yes. Why? Why? What is the reason? Because the means of production belongs to the organization, not to an individual. Okay, just keep this in mind. The bureaucratic officials are also protected from arbitrary dismissal. आप आप सपोज कॉर्पोरेट में देखा होगा, कॉर्पोरेट में क्या होता है, देयर इज अ जूम मीटिंग, और जूम मीटिंग में बोलता है, ओके फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर मी बट आई एम लेटिंग यू गो. उसके बाद द एचआर प्रिपेयर्स योर सेवरेंस पैकेज, और अगर अच्छा कंपनी नहीं हुआ, इफ इट इज नॉट अ गुड कंपनी, तो सेवरेंस पैकेज भी नहीं मिलता है. ओके, एचआर प्रिपेयर्स एंड विद इन 2 days यू आर आउट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर क्राइंग ऑन द स्ट्रीट्स. यहाँ पर क्या है, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसमिसल, आर्बिट्ररी डिसमिसल. यहाँ पर मजाल है किसको निकाल सकते हो. व्हाई गवर्नमेंट जॉब्स आर सो पॉपुलर, व्हाई ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स, people from IIT, they are ready to join group C jobs. What is the reason? What is the reason that getting a degree from IIT and they're, group C, because of job security. They are seeing कि यार मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स को तो निकाल दिया. ओके, उनकी सैलरी अच्छी खासी थी, 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी थी, लेकिन अब निकाल दिया. नाउ दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज. तो यार मैं जॉब ले लेता हूँ अभी के लिए, बिकॉज मुझे डिसमिस नहीं कर सकते आप. ओके, उसके पीछे क्या कुछ है, क्या बता सकते हो? इंडियन कंटेक्स्ट में हु प्रोटेक्ट्स फ्रॉम आर्बिट्ररी डिसमिसल? इंडियन कंटेक्स्ट में कौन प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्ररी डिसमिसल से? नहीं यार, प्रेसिडेंट नहीं, वो सिर्फ गैजेटेड ऑफिसर के उसमें रहता है. कैट सुना है? कैट, आर्टिकल 323A. यस भाई, आई टेल यू समथिंग वेरी इनफॉर्मली, मैं बता रहा हूँ. तुम बदतमीजी कर लो, ठीक है, किसी आईपीएस तुम हो भाई, प्यून हो, ठीक है, तुम बदतमीजी कर लो, लेकिन तुम्हें पता है कि कैट तुम्हारे साथ है, ठीक है, तो तुमको कोई डिसमिस नहीं कर सकता है. नोबडी कैन डिसमिस यू. ओके, बिकॉज कैट, ओके, कैट में जाओगे, अर्जी लगाओगे अपनी, यू विल गो टू कैट एंड यू विल से, ओके, दैट माय लॉर्ड, ऐसी ऐसी बात है, एंड दिस आईपीएस ऑफिसर वाज हरासिंग मी. ओके, तो कैट विल प्रोटेक्ट यू, ओके, फ्रॉम आर्बिट्ररी डिसमिसल. इसीलिए बहुत लोग डरते हैं. ओके, कैट में जाने से बहुत लोग डरते हैं. दे ट्राई कि बात ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही सॉल्व हो जाए. जब भी कुछ ऐसा मिसबिहेविंग का रहता है या इस टाइप का रहता है, फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से कि सपोज इफ अ सबऑर्डिनेट मिसबिहेव्स विद अ सुपीरियर, तो उसको डिसमिस नहीं कर सकता. इन अ प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट में डिसमिस हो जाएगा. अगर आप सीईओ से बदतमीजी करोगे तो एचआर विल टर्मिनेट यू नेक्स्ट डे. whereas in this setting generally ट्रांसफर हो जाता है आपका. यू कैन गेट ट्रांसफर टू अंडमान और चेन्नई. ओके, अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो चेन्नई, साउथ इंडियन हो तो आपको बिहार भेज देगा. ओके, या बिहारी हो तो आपको साउथ भेज देगा. इस टाइप की चीजें होती है. व्हाई? बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसमिसल, आर्बिट्ररी डिसमिसल. ओके, आर्बिट्ररी डिसमिसल. यस, मेंस में जरूरी है कैट वगैरह पढ़ लेना. मतलब वो तो हम अपने तो करेंगे, बट पीपल हु आर गिविंग मेंस, तो आप GS2 के लिए पढ़ लेना, एंड यू कैन स्टार्ट योर आंसर्स विथ लॉ कमीशन का रिपोर्ट. ओके, आई थिंक 270th रिपोर्ट है.
तो वो एक बार चेकआउट कर लेना. ओके, जस्ट चेक इट आउट एंड यू कैन राइट. ओके, यू कैन राइट, हाँ ठीक है. आई एम नॉट वेरी श्योर 270 है कि 246 है, बट लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है. ठीक है. यस, सस्पेंडेड भी रहते हो ना, अगर सस्पेंडेड भी रहते हो तो बहाल हो जाते हो. बहुत गंदा काम किया आपने. ठीक है, अगर आप पे ईडी या सीबीआई पीछे नहीं है और आप देयर वाज दिस पर्सन जिसने थप्पड़ मारा था कोविड में, याद होगा, छत्तीसगढ़ का डीएम था और उसने थप्पड़ मार दिया था एक बंदे को जो अपनी नानी को खाना पहुंचाने जा रहा था और उसका फोन तोड़ दिया था. यू गाइज रिमेम्बर दैट इंसिडेंट? तो वो 15,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया था 2015 में. 15,000 रुपीज, वो आईएएस ऑफिसर 15,000 रुपीज 2015 में लेते हुए पकड़ा गया था एज एन एसडीएम. भाई वो सस्पेंडेड रहा 1 साल, बट इवन आफ्टर गेटिंग कॉट he was in 2016 he was again appointed back as DM. ओके, ये चीज आपको याद रखनी है कि इसीलिए आर्बिट्ररी डिसमिसल से प्रोटेक्टेड होते हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स. तो ये आप लिख सकते हो, व्हाई देयर इज अ क्रेज. सपोज आपको एसए में लिखना हो, ठीक है, एसए में लिखना हो या मे बी इन जीएस4 लिखना हो, ठीक है, ऐसा कोई केस स्टडी आ गया, व्हाई देयर इज अ क्रेज माय फ्रेंड फॉर गवर्नमेंट जॉब बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. ओके, आप श्योर रहोगे कि मैं कितना भी बेकार परफॉर्मेंस करूं, 60,000 रुपए तो मेरे बैंक अकाउंट में या जो भी आपकी सैलरी है वो क्रेडिट होके रहेगी. ठीक है. क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, इनफ्लेक्सिबल रूल्स, ओके, एंड रिजिड सिस्टम, बिल्कुल हमने बात की थी. इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क विच लोअर्स द एफिशिएंसी, इसके बारे में भी हमने बात की. Rules and formalities lead to an unnecessary delay in the decision making process. I gave you the example of that tortoise, right? Turtle or tortoise, that it takes a lot of time to move from one place to another. If it wants to move the head, if the turtle wants to move the head, it takes a lot of time. Okay, yes. So because of that there is a delay in decision making process. नाउ वी विल, वेबर की थ्योरी हो चुकी है. ओके, वेबर की थ्योरी हो चुकी है, आपको पता है ना. देखिए, इट्स वेरी बेसिक. वेबर की थ्योरी क्या है? देखो, इतना बेसिक चीज है, ये तो सबको पता है. हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके खत्म कर दिया, लेकिन यूपीएससी में क्या है कि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल साउंड होना पड़ता है. ये सब लिखोगे ना कि रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज, लोअर्स एफिशिएंसी, इनफ्लेक्सिबल रूल्स, रिजिड सिस्टम, तो उतना दम नहीं लगेगा. बट यू विल राइट अकॉर्डिंग टू द वेबेरियन थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. Okay, there are inflexible rules and rigid system. Okay, means of production belongs to the organization according to Max Weber. ठीक है, you have to sound intellectual. That this is the very harsh truth. Okay, this is the very harsh truth that you have to face. So name dropping is very important. Okay, Elton Mayo. Now let us talk about Elton Mayo. So he believed in analyzing the multi-dimensional nature of human being. तो ये आप कहाँ यूज कर सकते हैं? GS4 में बिल्कुल यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज दिस इन एसे एज वेल. ठीक है. सो एल्टन मेयो इज फेमस फॉर हिज Elton Mayo is famous for his human relations approach. So let us see what is the human relations approach. So this approach by Elton Mayo lays emphasis on people and their motivation. Okay, unlike other approach which emphasize on structure and principles. यहाँ पर people centric. Okay, this is a people centric approach. Okay, लोग क्या हैं, लोग कैसे हैं, what the people are doing, what the people are, and what is their motivation, why the hell do they wake up in the morning and go to work, what is the reason they, okay, rather than focusing on some third grade principle or structure. ठीक है. इट जो मेयो का प्रिंसिपल है, इट एम्फसाइजेस ऑन द स्टडी ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू बेटर फंक्शन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, यहाँ पर एक चीज आपको देखना है कि एक ऑफिस है. ओके, दिस इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, आप एक कलीग है ए और एक कलीग है बी. ओके, बोथ ऑफ देम हैव अ बॉन्ड बट बोथ ऑफ देम आर वर्किंग in a big company.
colleague A, colleague B, both of them are working in a formal organization which is a big company, but ये जो बॉन्ड है ए और बी के बीच में, ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट, सो दे आर इस तरीके के काफी सारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? सपोज देर इज अ स्ट्रक्चर, ओके, देर इज अ स्ट्रक्चर, देर इज अ कंपनी टोयोटा, ओके, टोयोटा के अंदर काफी सारे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, लॉट ऑफ other people are working inside Toyota, they are forming a bond, okay, they are working together on different projects. So what it means to say is that there are lot of informal organization, there are lot of informal organizations, okay, which operates within a formal organization, और उनको समझना जरूरी है। ओके, या यहां पर आप ये देखो कि देयर इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप, ओके, इसका सीईओ ही वेंट टू द तिरुपति टेम्पल, he went to the Tirupati temple to better understand people management in his stores। यहां देख रहे हो, यहां पर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक फॉर्मल कॉर्पोरेट, इट इज नाउ अंडरस्टैंडिंग, okay, it is now understanding people management from a temple, and temple is basically a semi formal, yes, semi formal thing, right? हाँ, कामत का पॉडकास्ट में, राइट? तो वही मैंने आपको क्या बताया इसके पहले, इफ यू विल रिमेंबर एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, मैंने बोला कि आंख कान खुली रखो। इफ यू आर इन द मेंस मोड में अभी हो एटलीस्ट टिल नवंबर, तो आंख कान खुला रखो, जहां से मिल पाए, ओके। आपको हो सकता है कि कोई मूवी देख रहे हो वहां से मिल जाए, ठीक है, जस्ट ओपन योर वन नोट या एवर नोट और उसमें डंप कर दो अपने एग्जांपल्स, ठीक है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि वो कलीग्स वर्क कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो वाला, ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड ऑन दैट, उसका भी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर देखो कि एक इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तिरुपति टेम्पल, ओके, उससे सीख रहा है बिग बाजार का सीईओ हाउ टू मैनेज पीपल, ओके, हाउ टू मैनेज पीपल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एंड यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस, ये कहीं भी कोट कर देना, GS2 GS4 ऐसे। द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड माय फ्रेंड, व्हेन इट कम्स टू मेंस, द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड, यू कैन बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल, ठीक है। अब देखो, वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड डिग्निटी, इसका कंसेप्ट कैसे आया, ओके, एल्टन मेयो ने वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड डिग्निटी कैसे मतलब सोचा कि हाउ हाउ डज इट केम टू द फोर। So concept of worker productivity first came to the fore during 1920s and the 1930s, okay। इस समय 1920s में इकोनॉमिक डिप्रेशन का भी टाइम था, लेट 1920s एंड अर्ली 1930s, लेकिन इस समय मशीनरी ये भी इवॉल्व हुई थी। तो उस समय जब मशीनरी इन्वॉल्व हुई थी, टेक्निकल चीजें होनी स्टार्ट हो गई, ओके, थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग टेक्निकल, so people started measuring worker productivity for the first time, for the first time worker productivity measure होने शुरू हो गई। growing concentration and specialization of production demanded better coordination in the work of all sections of an enterprise, मतलब enterprise मतलब company। concentration and specialization of production मतलब now machines, ओके, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? अब जैसे सपोज पहले आप हाथ से पैक कर रहे थे, इफ सपोज यू हैव अ ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री एंड यू वर मेकिंग डो विद द हैंड, नाउ यू हैव अ मशीन, so if you want to operate that machine, okay, you will need, okay, you will need what? Better coordination, okay, or in all the sections, otherwise you will not be able to make full use, you will not be able to make full use of that machine। At the same time, technological progress led to rise of level of education। How does it, कैसे हुआ? Can you tell me? How does tech progress led to rise of level of education? Suppose you पहले क्या था कि you were able, you had to pack something by hand। Suppose you were in a bread packing factory, okay, you had to pack it by hand। उसके वजह से क्या हुआ? उसके वजह से क्या होता था कि कोई भी फिफ्थ पास या फोर्थ पास या अनपढ़ आदमी जाके ही कैन वर्क, एनी इलिटरेट पर्सन कैन गो एंड वर्क, वेयर एज नाउ टू ऑपरेट दैट मशीन ही नीड्स क्लास 12th डिग्री एट लीस्ट,
He needs to know class 12th maths to operate that machine. He need to know class 12th physics. So he has to read. The worker which was illiterate before, the worker which was illiterate before now had to be educated at least 12th. Now when you are educated, now when you are educated, obviously sense of dignity will be high. Sense of dignity will be high. Okay, ये चीज आप याद रखना. I'll tell you an example again. I have to go back to my father's office. इन सब के एग्जाम्पल पे I remember when I was a kid, जब मैं छोटा था in the early 2000s. Okay, in the early 2000s when I was a small kid, तो उस समय जो फादर के सबऑर्डिनेट्स होते थे, okay, जो ग्रेड डी में आते थे या ग्रुप सी में आते थे, they were not much educated. Okay, 8th पास क्राइटेरिया अभी भी है. 8th पास क्राइटेरिया अभी भी है. मान लो कि पर्टिकुलर जॉब की तो 8th ही पास आते थे. आई रिमेम्बर दोज अंकल्स, ओके, जो आते थे पापा के ऑफिस में. तो आई रिमेम्बर दे वर नॉट वेरी मच एजुकेटेड. आज के डेट में सेम रिक्रूटमेंट होती है सेम पोजीशन पे, बट व्हाट हैज हैपेंड, वी हैव प्रोग्रेस्ड. ओके, देयर हैज बीन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. अब क्या है कि नाउ पीपल नीड टू डू टेक रिक्वायरमेंट्स घुसा दिया है. पहले 8th पास होते थे सेम जॉब के लिए, ओके, ग्रुप डी में. नाउ दे हैव इंक्लूडेड टेक रिक्वायरमेंट की डिप्लोमा होनी चाहिए. ओके, यू नीड टू हैव अ डिप्लोमा इन दिस, मे बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ये इंजीनियरिंग. व्हाई? बिकॉज जो हमारा सोसाइटी है, इट हैज बिकम स्पेशलाइज्ड. नाउ द पीपल, सेम पीपल who are coming on this, they are very educated. They were wearing, okay, I remember they were wearing a better watch, okay, better watch than me. I remember there was this person, मेरे पास कुछ 1500 की वॉच थी, and that person was wearing 5000 rupees का वॉच. ठीक है, तो आप समझ रहे हो व्हाट इज द, मतलब अब इससे क्या हुआ है कि सेंस ऑफ डिग्निटी पहले क्या थी, वो अंकल लोग को, व्हेन आई वाज इन अर्ली 2000s, उन अंकल लोग को जो हायर अप्स होते थे वो कुछ भी बोल देते थे. ए तुम क्या कर रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रहा है, ओके आई विल स्लैप यू, ओके आई विल स्लैप यू. ठीक है, but now you cannot say that I will slap you and I will do that, because they are also professional. They have now a sense of dignity, because why? Level of education is high and professional skill is high. They will say good morning. Okay, पहले अभी क्या है कि they will say good morning, how are you doing. पहले क्या था, घर में घुस जाते थे, बाबू कैसे हो. Okay, so professional skill of worker has risen and the level of education has risen. उसके वजह से क्या हुआ है, सेंस ऑफ डिग्निटी इज देयर. आप इसको लिख सकते हो. ओके, आप इसको अपने अपने आंसर्स में लिख सकते हो कि बिकॉज ऑफ राइज ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल स्किल, ओके, द सेंस ऑफ डिग्निटी अमंग अमंग द वर्कर्स हैज रिजन. ओके, आप उनको गाली गलौज नहीं कर सकते हो. अभी भी आईएएस बन के जाओगे तो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाली गलौज नहीं कर सकते हो. देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप बीएससी हो और वो एमटेक है, या आप बीए हो और वो पीएचडी है. ये चीज हो चुकी है. ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस. सो सेम चीज आप फैक्ट्रीज में लगा सकते हो. पहले फैक्ट्री वाले क्या होते थे, अनपढ़ होते थे. दे वेर मे बी 5th पास, बट नाउ फैक्ट्री पीपल हैव अ मिनिमम डिप्लोमा, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इतना ज्यादा है. हैवी मशीनरी यू हैव टू यूज. ओके, this led to assertion of a worker sense of personal dignity. Okay, इसीलिए डिग्निटी को अब ऊपर रखना है. गाली गलौज नहीं कर सकते हो अपने वर्कर के साथ. पहले जैसा नहीं है कि 12 घंटे के लिए काम कर दिया, 12 आवर्स. यू रिमेम्बर फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट 1881 एंड 1891. उसमें क्या था कि 12 घंटे काम कर सकते हो. पहले 14-15 घंटे काम कराते थे, अब उसको कम कर दिया. ओके, अब ड्रकर की थ्योरी है. शैल वी टेक अ स्मॉल ब्रेक? ओके, ओके, एक और चीज मैं बोलूंगा बिफोर वी स्टार्ट अगेन. ओके, सो पीपल जिनका मेंस है, ठीक है, तो यार समय बर्बाद मत करना. ठीक है, यू हैव गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. इफ यू आर राइटिंग मेंस दिस टाइम, यू हैव गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. और आपका जो कंपटीशन है, इट इज नॉट विथ पीपल हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, इट इज विथ पीपल हु आर इन आईआरएस. ओके, जो आईआरएस में है, जो आईपीएस में है, आईएएस के लिए दे रहे हैं. ओके,
या जो जिनको रिजर्व लिस्ट मिल चुका है, रिजर्व लिस्ट में कोई सर्विस जो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में, इस टाइप के सर्विसेज में ऑलरेडी है, ठीक है, उन लोगों के लिए उन लोगों से आपका योर कंपटीशन इज देयर, ओके, नॉट विद पीपल यू नो हु हैव क्लियर्ड इट इन द फर्स्ट टाइम और क्लियर्ड इट सेकंड टाइम एंड दे आर राइटिंग यू नो मेंस, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो लग जाओ और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, योर एम शुड बी टू एटलीस्ट गिव इंटरव्यू दिस ईयर। इफ यू विल गिव इंटरव्यू ना, तो यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ओके, ओके आई कैन डू इट, ऑलराइट, बिकॉज अब प्रीलिम्स के स्टेज में बार बार आप रुक जाओगे ना, तो सपोज ठीक है कोई बात नहीं, प्रीलिम्स इज आल्सो हैज नाउ बिकम द टफेस्ट पार्ट, ओके, इट हैज नाउ बिकम द टफेस्ट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, बट द प्रॉब्लम इज कि जब तक आप मेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, सपोज 2024 में आप मेंस लिख रहे हो, तो ये डर आपके अंदर हमेशा रहेगा, ओके, कि यार मैं पहली बार मेंस लिख रहा हूँ, क्या गलती हो सकती है, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है, ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट है, या मे बी लास्ट अटेम्प्ट है, ओके, मुझे नहीं पता है, ओके, मुझे नहीं पता है, मैंने मेंस कभी नहीं लिखा है, ठीक है, तो अभी इस सपोज इस अटेम्प्ट में 2023 में मेंस लिख के इंटरव्यू दे दोगे ना, यू विल हैव दैट वैलिडिटी कि हाँ यार मेरा राइटिंग स्किल्स का वैलिडेशन हो चुका है, अब मुझे बस उसको इनहेंस करके 10 नंबर इधर, 5 नंबर इधर, 10 नंबर इधर करके सिलेक्शन ले लेना है, ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप इस जो दिस यू नो दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव बीन गिवन, यू डू नॉट स्क्वांडर इट, ओके, तो लग जाओ, मेहनत करो 100%, जितने भी दिन है, 90 days है, 3 months, वट एवर द टाइम इज देयर, ओके, डू नॉट स्क्वांडर इट, ठीक है, आगे चलते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड, अब पीटर ड्रकर की थ्योरी पढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट पीटर ड्रकर्स थ्योरी, so you can use this in corporate ethics GS4 and SA. So Peter Drucker की जो थ्योरी है, Drucker's theory is used by big corporates like IBM, General Motors, Procter and Gamble. So let us see what is that theory. So Peter Drucker क्या कहता है? According to Peter Drucker, successful leaders should put people and ethics first rather than focusing entirely on profits and rigid rules and work structures. ओके, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, व्हेन यू आर राइटिंग दिस, यू नो, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर्स थ्योरी डिक्टेट्स, यू कैन राइट लाइक दिस, ओके, दैट सक्सेसफुल लीडर्स शुड पुट पीपल एंड एथिक्स फर्स्ट। जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं, सफल लीडर्स होते हैं, ओके, तो दे पुट पीपल एंड एथिक्स फर्स्ट rather than focusing on profit of the company and the rules and work structure, okay, जो कंपनीज या जो लीडर्स लोगों पे, अपने एम्प्लॉयज पे एंड द एथिक्स विच इज गाइडिंग द कंपनी, उस पे फोकस करते हैं, दे दे आर सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू ड्रकर, ओके, successful leaders need to be guided by ethical and moral principles rather than profits, okay, leaders who are successful, they are guided by ethical and moral principles rather than profits, just keep this in mind. Managers should empower employees by actively delegating worthwhile tasks. आप empower कैसे कर रहे हो? Suppose okay, suppose ISSF है, okay, I work for a think tank called ISSF. तो वहां पर जो उसका डायरेक्टर है, the person who is leading ISSF, जब भी वो कुछ काम देता है, okay, there is a 8 member team, जब भी वो कुछ काम देता है तो पीपल गेट यू नो वेरी एक्साइटेड कि यार मुझे कुछ काम करने का मौका मिला है, ठीक है, व्हेन वो जब वो काम नहीं देता है, व्हेन ही डज नॉट गिव एनी वर्क, ओके, ही सेज दो आई बी डूइंग इट एवरीथिंग माई सेल्फ, तो यू नो पीपल स्टार्ट सेइंग दैट यू नो हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन, they say ki why did I join this think tank if I didn't have to do anything, right? So when you delegate worthwhile task, करने लायक काम आप अगर देते हो लोगों को, so they feel empowered. ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर आप एक लीडर हो, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हो, दिस कैन बी यूज्ड वेरी वेल इन योर एथिक्स का पेपर, that you can say how you will you know how you will be you know empowering, okay, you can use this in case study. Case study क्या है, there is a person who is you are a manager, suppose the example देता हूँ, you are a manager, okay,
you are a manager and there is a person, okay, there is a person, वो employee है, आप manager हो उसके, and he is low on confidence, okay, so how you will deal with him, and he is being contemplating suicide, how you will deal with him? So one of the you can direct him to therapy and you can talk to his family member, that is one thing. दूसरा चीज ये भी हो सकता है, I will start actively delegating him worthwhile tasks to up his confidence, to up his self worth. समझ में आ रहा है? प्लीज ये कर सकते, ये लिख लेना। और इसके पहले थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू ड्रकर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुजी पेपे लिखोगे या अकॉर्डिंग टू अभी शर्मा लिखोगे, अकॉर्डिंग टू अभिषेक सिन्हा लिखोगे, या अकॉर्डिंग टू मे बी आप लिखोगे ये रंजन दुबे या पीयूष, तो नहीं नहीं नंबर मिलेगा। ओके, बट इफ यू विल राइट अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, अकॉर्डिंग टू ये मैक्स वेबर, इस टाइप से लिखोगे तो यू विल साउंड इंटेलेक्चुअल। दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन और एनी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर। ओके, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। तो वर्थवाइल टास्क जब आप डेलीगेट कर रहे हो किसी को, आप बोलते हो कि भाई तू ये काम कर ले, यू डू दिस थिंग, ओके, यू डू दिस थिंग, यू डू दैट थिंग, you are making them empowered, okay, you make them feel empowered. So this is a trait of a successful leader or a good manager. Smart method, what is the smart method that is devised by Peter Drucker? So goals जो organization set करती हैं, organization which set goals, they need to be smart. What is smart? They need to be specific, they need to be measurable, they need to be achievable, and they need to be relevant and time specific. मतलब क्या है, क्या करना है, what needs to be done, it has to be detailed out, it should be measurable, it should not be like this कि आपने कुछ काम दिया और सर मैं करूँ कैसे, इसको इसको करना कैसे, यही नहीं पता है। ओके, people should be able to measure it, okay, okay, this need to be done, okay, this way, okay, or this needs to be done that way. It should not be like this, it should not be vague basically. उसके बाद इट शुड बी अचीवेबल। अगर आप बोल रहे हो किसी बंदे को कि आई एम डेलीगेटिंग यू टास्क बट यू हैव टू सबमिट 7 रिपोर्ट्स विद इन 2 hours, okay, which normally takes 10 days, this is not achievable, this is not a trait of a good leader. Or and the task should be relevant, the goals and the task should be relevant, okay. आप अगर किसी को बोल रहे हो कि आई एम डेलीगेटिंग यू टास्क, द टास्क इज कि सीढ़ी चढ़ो, ये ऑफिस के 100 फ्लोर है, उस पर सीढ़ी चढ़ो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। रेलेवेंट होना चाहिए। उसके बाद टाइम स्पेसिफिक, ओके, इट शुड बी टाइम स्पेसिफिक, आई एम डेलीगेटिंग यू टास्क एंड दे विल आस्क यू कब तक देना है, ओके, और व्हेन शुड आई गिव यू, यू शुड नॉट से कभी भी जब आपका मन करे। दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग ट्रेट, you should say भाई प्लीज हैंड इट ओवर बाय 15 जून 2023, ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ड्रकर्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एंड ओरिजिन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, वाई, बिकॉज ये एक कोर GS4 का टॉपिक है। दिस हैज बीन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ओके, दिस हैज बीन आस्क्ड टाइम एंड अगेन इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट व्हेन इट कम्स टू दीस टॉपिक्स। तो ड्रकर को आप यूज कर सकते हो, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, यू कैन यूज ड्रकर, ओके। नाउ लेट अस सी क्या है। तो CSR, इसको आप कॉर्पोरेट एथिक्स GS4 में यूज कर सकते हो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस सेल्फ रेगुलेशन, दिस कैन बी योर इंट्रो माय फ्रेंड। It is a type of business self regulation to be socially accountable. You are a company, so you are interacting with a society, yes, you have to be accountable to that society. आप अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, you are interacting with the society. आप किसी जगह पे, ओके, किसी हैबिटेशन में आपका फैक्ट्री है, your factory is located somewhere, you are interacting with that society as a company, okay, so you need to be socially accountable, okay, and contribute to well-being of communities and society as a whole. इंडिया में पता है ना कि 3% of net profit, पहले 2% था आई थिंक, अब 3% of net profit has to go towards CSR. Generally you go and go to KFC and they ask you, do you wish to add 2 rupees for KFC India Foundation, KFC Feed India Foundation, and Zomato, when you are ordering from Zomato, do you wish to add 2 rupees for Zomato? So what is that? This is basically CSR initiative.
corporate social responsibility initiative. In my village, ONGC has installed solar pumps. In my village, ONGC has installed solar pump. वहां पर लिखा हुआ है ONGC CSR. Okay, ONGC CSR, corporate social responsibility. Okay, तो ये क्या करती है, जो सोसाइटी से जो सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रही है कंपनीज, उसके लिए अकाउंटेबल है, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग ऑफ कम्युनिटीज एंड सोसाइटी एज अ होल. कंपोनेंट्स क्या क्या है, लेट अस सी द कंपोनेंट्स. बीइंग एनवायरमेंटली कॉन्शियस. आपका फैक्ट्री कहीं पर है, इट इज नॉट पोल्यूटिंग इट. ओके, इट इज नॉट पोल्यूटिंग द सोसाइटी इट इज प्रेजेंट इन. ओके, inclusive policy in workplace. Okay, that suppose there is a women employee, there is a disabled employee, okay, there is a transgender employee, you are including everyone, you are not making them feel left out because of their identity in the workplace. Okay, treating employees with respect. You are treating everyone despite their caste, creed, gender, okay, place of birth, descent. इंट्रोड्यूसिंग वॉलंटियरिंग एंड चैरिटेबल इनिशिएटिव्स. ओके, आपने देखा होगा काफी सारे आपके दोस्त वगैरह जो दे आर इन द कॉर्पोरेट्स, योर फ्रेंड्स हु आर इन द कॉर्पोरेट्स, they must be saying today I planted trees, today I cleaned the beach as part of my company's drive. Okay, so these kind of things, okay, these are the components of your corporate social responsibility, that you are inclusive, that you are treating employee with respect, you are environmentally conscious, and you introduce volunteering and charitable initiatives. Okay, काफी सारे लोग बोलते भी हैं, if you go to this mock interviews, IS mock interviews, they say why are you coming switching to civil services from working in this company. They say that as part of my company I went to this village to teach, and वहां से मेरा अंदर का IS जाग चुका है. ठीक है, ऐसे टू बी ऑनेस्ट, अगर वो ऑनेस्ट होते तो वो बोलते कि सर पैकेज नहीं बढ़ रहा था, ठीक है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही थी तो इधर आ गए. लेकिन ये नहीं बोलते, जैसे कि हम गए थे ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाने. ओके, गरीब बच्चों को पढ़ाने, और वहां पर वी वेंट एंड टू टीच पुअर चिल्ड्रन, और वहां से मेरा अंदर का आईएएस जाग गया. Embracing CSR has become the modern standard for ethical and progressive companies. लेकिन इसके पीछे कौन है? ड्रकर है. ड्रकर इज द पर्सन हु मेन स्ट्रीम्ड CSR. ओके, सबसे पहले अमेरिका में ये आया था, अमेरिकन कॉर्पोरेट्स में आया था. तो ड्रकर वाज द पर्सन हु मेन स्ट्रीम्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी क्या है, 21st सेंचुरी में इट हैज बिकम द गोल्ड स्टैंडर्ड. एवरी कंपनी इज डूइंग इट. ओके, ड्रकर्स थ्योरी फॉर बिजनेस मैनेजमेंट encourage collaboration. You can very well write this. ठीक है, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान देना. डेलीगेट पावर इक्विटेबली. सबको पावर आप डेलीगेट करो. ये कंसंट्रेशन मत रखो एक आदमी में. इफ यू आर द लीडर, डू नॉट कंसंट्रेट पावर इन योर हैंड. ओके, encourage collaboration, increase the efficiency in your organization, and encourage innovation. जब तक इनोवेशन आप नहीं encourage करोगे, there will not be increased efficiency. Okay, collaboration होगा innovation से. When you will ask for innovation, there will be collaboration. Okay, aspects of corporate social responsibility. Leader in every sector are responsible for the community as a whole. Maybe you are a a jewelry tycoon, maybe you are a startup unicorn billionaire. Okay, maybe you are a a leader, a CEO of a traditional company. Still you are responsible to the community as a whole, doesn't matter. Okay, leaders in every sector, be it government, private, semi government, PSUs, as a leader you are responsible to the community as a whole. It's up to the company to create an ethical customer. ये देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लाइन है, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर. इट्स अप टू द कंपनी, कंपनी के ऊपर है टू क्रिएट एन एथिकल कस्टमर. ओके, आप कस्टमर को क्या बोलोगे? ओके, कस्टमर को कैसे गाइड कर रहे हो? आपका बॉटल है, देखो सपोज कोका कोला है, उसकी बॉटल है, ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी है. ठीक है, अगर वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाना स्टार्ट कर दे कोका कोला अपनी बॉटल्स, तो क्या कस्टमर खरीदेगा? उसके पास कोई चॉइस रहेगी कि नहीं नहीं मैं तो बायोडिग्रेडेबल बॉटल नहीं खरीदूंगा? उसके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी. ही विल बाय दैट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. लेकिन कंपनी नहीं बनाती है. ओके, द कंपनी इज नॉट मेकिंग इट. तो इट इज अप टू द कंपनी
to create an ethical customer. अगर आप एक फास्ट फैशन ब्रांड है, if you are a fast fashion brand and you use sustainable material and you are using sustainable material, आप एक sustainable material यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका कस्टमर खरीदेगा, द कस्टमर विल बाय दैट, ओके ओके, द कस्टमर विल बाय दैट प्रोडक्ट. He doesn't care if it is sustainable material or if it is sustainable packaging. It is up to the company, okay, because customers are blind, okay, they are not conscious enough. The duty is of the company, okay, to create an ethical customer. No issues, you can watch the recording, ठीक है, जहां से आपको आपका छूट रहा है, okay, जहां से भी आपका छूट रहा है, once the electricity is back, you can watch the recording. I'll upload the video, okay, no issues on that. अब ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज, दैट इज एनी एक्शन ऑफ द कॉर्पोरेट हैज सेवरल अनइंटेंडेड कंसीक्वेंसेस. इसका एग्जांपल देता हूं मैं. इसका सुना है? क्या नाम है उसका, किशोर बयानी का नहीं, एक दिस पर्सन, दिस राधा कृष्ण दमानी वाला, जी मार्ट है क्या? राधा कृष्ण दमानी का एग्जांपल क्या है? डी मार्ट है, राइट, डी मार्ट है. तो जब वो डी मार्ट आया तो उनका क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या हुआ, वहां पर उन्होंने सस्ते प्राइसेस देना शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड गिविंग चीप प्राइसेस. तो किसका भला हुआ? कस्टमर का भला हुआ. कस्टमर सेइंग वाह वाह दमानी साहब, डी मार्ट इज वेरी गुड, द डी मार्ट इज गिविंग अस हेवी डिस्काउंट्स, द कस्टमर इज फीलिंग एम्पावर्ड. तो यहाँ लाइबिलिटी क्या हुआ? द स्मॉल बिजनेसेस, दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस. all the kirana ka dukan aspas, people stop buying from them. Yeah, loss of mom and very good, yeah. Loss of mom and pop store, yes. So this is, whatever the corporate does, Peter Drucker is saying whatever the corporate does, even if it is in the in the uh, within the whatever the corporate is doing, suppose they are doing something, they started doing something saying that we are doing this in favor of customers, we are doing this to empower the customer, still it will have some kind of liability, okay. So it is saying whatever the corporate does, no matter how noble the intention is, it will have some or the other liability, okay. ये चीज आपको ध्यान रखना. Now coming to Chester Bernard, okay, again I am saying those who are giving means, इसका summary 2 पेज में आप बना लेना, okay, 2 पेज का summary आप बना लेना, important points लिख लेना जो आप include कर सकते हो आंसर में. देखो पढ़ पढ़ के अच्छी, बर्नार्ड का पढ़ लिया, ड्रकर का पढ़ लिया, ठीक है, एल्टन मेयो का पढ़ लिया, सबका पढ़ लिया, बहुत मजा आ रहा है, ओके. लेकिन अगर आप इसको अपने आंसर में नहीं लिख पाए, if you are not able to inculcate in your answer, तो सब बकवास है, okay. That's why it is very important for people who are writing means and people who are writing means next year, that once you get time, इसको जो भी important point है लिखने लायक, okay, whatever you can write in the exact paper, okay, just take it out and summarize it in 1 or 2 sheets, okay. अब यहाँ पर देखते हैं चेस्टर बर्नार्ड की एक्सेप्टेंस थ्योरी क्या है, ओके. ये कॉर्पोरेट एथिक्स में आप यूज कर सकते हो. इट स्टेट्स दैट अ मैनेजर्स अथॉरिटी ओवर हिज और हर सबऑर्डिनेट्स depends on the willingness of the subordinate to accept his or her right to give orders and comply with them. बहुत अच्छी चीज बोली है इसमें. He is saying very good thing that एक मैनेजर की अथॉरिटी ओवर हिज सबऑर्डिनेट डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ द सबऑर्डिनेट, कि सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं आपकी अथॉरिटी, ओके. तो ये चीज कहां पर ज्यादा दिखती है, ये विलिंगनेस एक्सेप्टेंस थ्योरी इज ट्रू फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन मोर, ब्यूरोक्रेटिक और अ नॉन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन? विलिंगनेस हाई कहां पर है ऑफ द सबऑर्डिनेट? कॉर्पोरेट में, नॉन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में. ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में विलिंगनेस लो होती है, ओके. ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में विलिंगनेस लो होती है. अगर वहां पर अगर आपको बोल दिया, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में बोल दिया कि ये करो, तो आप मना नहीं कर सकते हो. मतलब कर सकते हो मना, बट दैट विल बी एट योर ओन, एट योर ओन रिस्क, ओके. आपके ओन रिस्क पे होगा, ठीक है. जो बर्नार्ड है, ओके, चेस्टर बर्नार्ड है, ही सेज कि डिवाइडेड ऑर्गेनाइजेशन इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स. अभी मैंने आपको बताया था ना, देयर इज अ कंपनी टोयोटा, उसके अंदर बिलियंस ऑफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग. व्हेन एम्प्लॉय ए एंड एम्प्लॉय बी
interact with each other, bond with each other. They form an informal group within a formal organization. Okay, within a formal organization, they are forming an informal group. Okay, ये चीज आपको ध्यान रखना है. तो यही चेस्टर बर्नार्ड कहता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, उसमें काफी सारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. He said that the informal organization are part of formal organization. These informal groups evolve to become the informal organization. Okay, अरे यार ये formal organization है, ठीक है. These informal groups evolve to become the formal organization. Okay, जब A employee B employee के साथ work कर रहा है, okay, when employee A is working with employee B, okay, then only he will be contributing to the formal organization Toyota. Okay, yes or no? ठीक है. The informal groups believe, जो informal group है, beliefs and values establish the organization's overall culture. Millions of informal groups form the formal group. Yes, और जो formal group का culture and value है, that is being decided by the informal group. Okay, so that is why Chester Bernard is saying that focus on the informal group, my friend. Focus on the interpersonal relations. Okay, then only it will get reflected. Okay, once your employees are happy, once your millions of informal groups that are found within the formal organization, they are happy, then the overall organization will be happy. You're understanding what I'm saying? I think this is clear. Okay, so focus on the employees. Okay, focus on the well-beings of the employee, and your organization will be okay. All right. Student activity center, yes, it can be absolutely. कोई भी organization किससे बनता है? School है, college है, students, teachers, support staff, administration, इसी से बनता है. तो once they are interacting with each other, student और teacher interact किया each other में, तो they are forming an informal group within a formal organization. When a student and a teacher interact with each other, they are forming an informal group within a formal organization. Okay. Mary Parker Follett. Okay. Follett's theory states that true leaders create power for the group rather than hoarding it or keeping it for themselves. जो सच्चा लीडर होता है, सक्सेसफुल लीडर होता है, he create power for the organization, for the group, not keep it to himself. Okay. As organizations does not exist for one person's benefit. कोई भी organization होता है at its core, okay, it does not exist for one person's benefit. Okay, हमने ग्रुप बनाया, कोर बैच, सपोज हमने कोर बैच बनाया, तो वहां पर ऐसा थोड़ी है कि मुझी पे ही मैसेज करेगा. ओके, मुझी पे सबसे कम यूज करता है, माइट भी उससे ज्यादा बाकी लोग यूज करते हैं कोर ग्रुप को. ओके, तो वो किसके लिए है? इट इज नॉट फॉर वन पर्सन बेनिफिट. ऐसा नहीं है कि प्रियांश के लिए बनाया गया ग्रुप, ओके, एसएस के लिए बनाया गया, अभी भाई के लिए बनाया, अंकित के लिए बनाया. ओके, ऐसा नहीं है कि रंजन के लिए बनाया. ओके, कोर ग्रुप वो सबके लिए. ओके, इट इज फॉर एवरीवन. ये ऐसा नहीं है कि पीयूष ही सिर्फ यूज कर रहा है. ओके, एवरीवन इज यूजिंग. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इट इज नॉट वन पर्सन बेनिफिट, और ओके, इट इज फॉर एवरीवन. और जो ट्रू लीडर होता है, ओके, ओके, ट्रू लीडर होता है, वो होल्ड नहीं करता है पावर, वो सबके लिए पावर डेलीगेट करता है. ओके, नॉट एग्जैक्टली डेलीगेटिंग, बट ही क्रिएट्स पावर. ओके, क्रिएट करता है पावर. ठीक है, तो ये बेसिकली परमानेंट डेलीगेशन हो सकता है. हम ये कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड परमानेंट डेलीगेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये सब चीजें लिख लेना. ये आईएएस, एज एन आईएएस अगर आपको स्टेक होल्डर बनाना पड़े, 20 मार्क्स का आता है एथिक्स का केस स्टडी, तो वहां पर ये सब बोल बच्चन करना बहुत जरूरी हो जाता है. 4 पन्ने भरने होते हैं, 4 पेजेस यू हैव टू फिल. तो ये सब फिलर मटेरियल है. ओके, दीज आर फिलर मटेरियल, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते इतना खो नहीं जाएंगे. वी विल नॉट स्टार्ट ड्रीमिंग, ओके, दैट वी आर रीडिंग अबाउट मैरी फॉलेट और उसी को पढ़ पढ़ के खुश हो रहे हैं कि अब मैरी फॉलेट, ओके, ड्रकर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं है. ठीक है, यूज कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है. As organization does not exist, ये कर लिया. Organization should operate as network of self-managing teams. Organizations should operate as networks of self-managing team.
And Follett has defined management as the art of getting things done through people. लोगों के थ्रू, ओके, काम को करवाना. So organizations should operate as network of self managing team. ये समझ आ रहा है आपको? आप suppose there is an organization, okay, there is an organization, okay, ये सेंटर है, उसका हेड है. तो मल्टीपल वेज में ऑर्गेनाइजेशन, ये जो टीम्स है इस ऑर्गेनाइजेशन की, ये अपने आप को खुद मैनेज कर ले. यहाँ से डिक्टेशन नहीं आना चाहिए. अकॉर्डिंग टू फॉलेट, यहाँ से डिक्टेशन नहीं आना चाहिए. इट शुड ऑल, ए है, बी है, सी है, डी है, ओके, इट शुड नॉट कम फ्रॉम एक्स, द डिक्टेशन विच इज द हेड. ए शुड बी एबल टू मैनेज इट सेल्फ, बी शुड बी एबल टू मैनेज इट सेल्फ. सेल्फ मैनेजिंग होना चाहिए. ओके, ठीक है. सो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थे. बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू समराइज दीज नोट्स, ताकि रिवीजन में हेल्प हो. जब तक आप इसको इनकलकेट नहीं कर पाओगे अपने आंसर राइटिंग में, सब बेकार है पढ़ना. इतना मैक्स वेबर के बारे में, ड्रकट के बारे में पढ़ना. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक सम टाइम ऑफ एंड 2 पेजेस में समराइज कर दो. ठीक है, फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन. सो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक दैट वाज इट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. कल हम ट्राई करेंगे इंडियन थिंकर्स या वर्ल्ड थिंकर्स करने का. ओके, आई थिंक टुमारो इज सैटरडे ना, हाँ कल कर लेंगे. ठीक है. एंड संडे को एंथ्रोपोलॉजी, जिन जो इंटरेस्टेड है, whoever इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप एंथ्रोपोलॉजी, तो एक ओरिएंटेशन क्लास करेंगे. उसके साथ संडे को हम ये भी करेंगे, आंसर राइटिंग सेशन फॉर GS1 आर्ट एंड कल्चर. ओके, वो भी करेंगे. आई हैव स्टार्टेड सेंडिंग द ये मॉडल आंसर्स. ओके, तो संडे को डिस्कस करके हाउ टू राइट गुड आंसर्स इन इंडियन कल्चर एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर. उसके बाद मंडे से वी विल ट्राई की मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम कर लें. ठीक है, ऑलराइट. मंडे को RCA का एग्जाम है. व्हाट इज RCA का एग्जाम? ओके, एक मिनट, लेट मी जस्ट